Good morning, everyone. My name is Akansha, and today we will discuss about the geography, and the chapter is atmosphere. So, please uh, tell me what I am doing. Yes, I'm doing breathing. Okay. Uh, through which, through which, how I breathe. Yes, oxygen. Where oxygen flows, oxygen flows in air, and where air is flows. Yes, atmosphere. In atmosphere, air flow. As we all know, air have so many gases, and in atmosphere we have so many gases, layers, and all. So today we will discuss about the layers of the atmosphere. So today's topic is atmosphere. So atmosphere, what is atmosphere? The Earth is surrounded by mixture of gases which is called atmosphere. The atmosphere extends to a constant distance of several hundred kilometers. Our Earth is unique among all planets of the solar system because the Earth is only planet in term where there is life. The reason for this is due to availability of water on the earth due to availability of proper amount of heat from the sun, and our atmosphere is filled with life living gases. If there was no atmosphere, the earth would be destroyed, deserted as the moon. If in our earth there is no atmosphere, उसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो मून की तरह हो सकता है। जैसे मून एक डेजर्टेड एरिया है जहाँ पे सिर्फ एक लाइक सैंड टेक्सचर फॉर्म है, इसी तरीके से हमारे अर्थ पे भी हो जाएगा। सो और हमारा अर्थ एक यूनिक प्लेनेट क्यों है? हमारा अर्थ एक यूनिक प्लेनेट इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ पे वाटर अवेलेबल है। दैट्स व्हाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ atmosphere. The atmosphere is made up of many types of gases which 99% part occupied by two major gases. जो हमारा अर्थ है वो बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है। तो जिसमें कि मतलब लाइक 99% पार्ट जो है हमारे अर्थ का वो गैसेस से कवर्ड है, ऑक्यूपाइड है, जिसमें से हमारी नाइट्रोजन गैस है वो 78% है, एंड ऑक्सीजन इज 21%, एंड रिमेनिंग 1% gases are argon, carbon dioxide, hydrogen, and ozone. Apart from gases, dirt particles, water vapor also found in atmosphere. हमारे atmosphere पे dust particles होते हैं, as we all know. जब sun की rays आती हैं तो उसमें आप कभी देखना उस sunlight में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं, एक लाइक उड़ता हुआ दिखता है ना, कुछ कुछ ऐसा, वो डस्ट होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। Those particles attracts the water vapor toward them, due to which water form it cause cloud, rain and fog. जो हमारा मतलब डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो हमारे वाटर वेपर से अट्रैक्ट होती हैं, जिससे वो फॉर्म करती है क्लाउड्स को, रेन को और फॉग को। Now we will discuss about the layers of the atmosphere. Earth attracts the gases toward itself, due to which heavier gases are found in the atmosphere near the earth and lighter gases are found higher. जो हमारा अर्थ होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, हमारा जो इमेज है इसमें जो अर्थ है, अर्थ के जो नीचे की लेयर्स हैं उसमें जो गैसेस होती हैं वो मतलब लाइक हैवियर होती है, वो हैवी गैसेस होती है। और जो ऊपर की साइड में होती है, लाइक जैसे थर्मोस्फेयर है हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर है, एग्जॉस्फेयर, सबसे अपर लेयर जो है, वहां की जो गैसेस होंगी वो एकदम लाइट होती है, बहुत लाइट होती है। Thus, on
The basis of atmosphere and density atmosphere divided into 5 layers. जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके जो उसे 5 उसमें लेयर्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, second layer is stratosphere, third layer is mesosphere, and fourth layer is thermosphere, and last fifth layer is exosphere. Now we will discuss these layers one by one. So first is troposphere. What is troposphere? Okay, let me tell you one thing. Uh, as we can see, okay. Now I will tell you something else. जो हमारी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसमें जो बीच की जो लाइनें होती है जो उसे डिवाइड करती है, ठीक है, लाइक जो उसे डिवाइड करती है वो होती है थर्मोस थर्मोपॉज. फिर स्ट्रेटोफेयर और मेसोस्फेयर की जो लेयर होती है जहाँ पे वो एंड होती है वो होती है मीजोपॉज. और जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर की जो लेयर होती है जो उसे कट करती है जहां से थर्मोस्फेयर स्टार्ट होती है वो वाली लाइन होती है मेसोपॉज. ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक नॉलेज में आता है. ठीक है, जो हमारी थर्मोस्फेयर होती है वो 13 किलोमीटर तक होती है. जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है वो हमारी 50 किलोमीटर्स तक होती है. जो हमारी मेसोस्फेयर होती है वो 80 किलोमीटर्स तक होती है. और जो थर्मोस्फेयर होती है वो हमारी 80 से 400 किलोमीटर्स तक होती है. एंड एक्सोस्फेयर लास्ट तक होती है. Okay, so we will discuss first point, thermosphere. It is the lowest layer of the atmosphere which is found up to a height of 15 kilometers from the Earth's surface. Its height is about 8 kilometers at the poles and up to 18 kilometers at the equator. Many events related to weather take place in a region. As I told you कि हमारी जो layers होती हैं उसकी जो हाइट होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है. और जो वो स्टार्ट होती है फ्रॉम इक्वेटर से स्टार्ट होती है 18 किलोमीटर तक जाती है. एक लाइक एग्जाम्पल इसमें होते हैं फॉग, क्लाउड्स. ओके, सो स्ट्रेटोस्फेयर. Ozone layer is found in the stratosphere which protect us from the harmful ultraviolet comes from the sun. जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो हमारे उसमें जो हमारे लाइक स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है उसमें हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं. ओके, उसमें हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है. इसमें ये होता है कि जो एयर होती है ना वो एक स्टेबल होती है. जैसे थर्मोस्फेयर में बहुत बहुत ज्यादा हमारा फॉग भी उसी में होता है, हमारी रेन भी उसी में होती है. ठीक है, और हमारा जो मतलब वेदर क्लाइमेट चेंज होता है वो भी उसी के अंदर अंदर ज्यादा चेंज होता है. तो इसीलिए वहां पे ज्यादा उथल पुथल रहती है. इसी वजह से जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो हमारे मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी होती है एक. वहां पे कभी वेदर खराब होता है तो हम लोग कभी ना उसे जो हमारा एरोप्लेन होता है उसे कभी लैंड नहीं करवाते. वो पता है ऊपर ऊपर घूमते हैं लेके. वो इसी वजह से, क्योंकि अगर वो थर्मोस्फेयर में आएंगे तो थर्मोस्फेयर में आने की वजह से वो क्रैश भी हो सकता है या फिर कुछ और डिफेक्ट भी हो सकता है. तो इसीलिए नाउ और वन मोर थिंग, जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर के पास पाई जाती है. सो वी थैंक यू टू स्ट्रेटोस्फेयर हु प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज. ओके, मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर में जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो उसमें फॉल करते हैं. मेटेरॉइड्स आर लाइक, आप लोगों ने सुना है कि स्पेस से एक पत्थर की तरह का कुछ नीचे आ रहा है. हमने न्यूज में भी सुना है लाइक पत्थर की तरह का एक वो आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, वो ध्रुव तारा भी बोला जाता है उसे. ठीक है, और वो आता है जब वो गर्म होता है तो वो गर्म होने की वजह से वो हमारी एयर से जब टकराता है तो वो बर्न हो जाता है. वो बर्न होने की वजह से आग, मतलब आग का गोला टाइप बन जाता है. तो वो होता है, तो मेसोस्फेयर उसको उससे प्रोटेक्ट करता है. नाउ थर्मोस्फेयर. रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्ट टू द अर्थ बाय थर्मोस्फेयर. जो हमारी रेडियो वेव्स होते हैं जिससे हमारा
ये टेलीफोनिक वगैरह होते हैं, या फिर हमारी जो ये लैंडलाइंस होती हैं, या फिर हमारे जो अदर कनेक्शन होते हैं लाइक वॉकी टॉकी वगैरह, ये हमारे थर्मोस्फेयर लेयर की वजह से ही चल पाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो होता है आयन्स होते हैं। आयन्स होते हैं जो वो ना जो सन की रेज होती है उससे चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर करते रहते हैं अपने आप को, मतलब स्टेबल नहीं रहते, मूव करते रहते हैं इधर उधर। मूव करने की वजह से जो हमारी रेडियो वेव्स है उसमें हेल्प करते हैं वो। नाउ exosphere. Exosphere, light gases such as hydrogen and helium are found in this region. इसके अंदर एग्जॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैसेस, हीलियम गैसेस पाई जाती है। ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है। ये भी एक स्टेबल लेयर होती है। यहाँ पे भी एयर का एकदम मतलब थिन लेयर होती है, ये भी थिन एयर आती है यहाँ पे। बहुत स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे भी, कोई ऐसा उथल पुथल नहीं मच रही होती है, बिल्कुल एकदम काम होती है। Thank you so much for listening carefully and paying for your attention.